But the father of this teen brat who rams into Sahil is now saying that I was not aware that he took the car out. And more details are emerging, viewers. A lot of challans, a lot of have happened against this car, even in the past, even in the past against this, for this Scorpio, of course, that is in question. And a young life, of course, is lost due to a brat who decides to shoot reels during a speeding car, or while he is driving a speeding car. This is the state of affairs, very shocking, would make anyone very, very upset and also angry to see the kind of negligence. The parents, of course, very conveniently of this teen driver have brushed their hands off the whole matter and said that we were not aware, we were out of town. But how did a teenager who didn't even have a driving license have the audacity to take a car out and decides to even drive it on the wrong side of the road and then decides to drive so fast and shoot reels simultaneously? Look at the state of affairs, viewers. This is absolutely shocking and disgusting, to say the least. A 23-year-old has lost his life. We can only imagine what his mother would have been going through at this point. Very disturbing. I have Rumi Mishra joining me with more details. Rumi, over to you. Vaishali, we saw the entire video. We see the teen driver's sister recording this video as they zoom past roads. These roads don't even have dividers on them. So it's a one-way road on which this guy is just zooming past. He hit the bus in question right there on our screens. We can see the yellow school bus over there. That was also hit by this driver, following which Sahil was of course hit. He died. We know that he had cranial fracture. We know that he had severe hemorrhage in his brain because of the crash, and his lungs were punctured, and a lot of different problems he was facing after the crash. Of course, his mother, remember, claimed that she saw her son's body lying on the road with his jacket torn, and he was screaming for help, begging for help for 10 minutes, yet no help arrived. People were busy shooting videos, like in the video that's on our screens. This video was being shot for reels and just to show that they can drive their parents' cars, flaunting money. And this is not the first incident that has happened. This past week, we saw two other incidents. One in Kanpur, where the Lamborghini crash happened. Of course, one guy crashed and crushed over 6 people. And the other one in Lucknow, where a teen driver yet again drove very Right. I wrong. also have Manas, who's Sahil's, who's his friend, of course, who's joining me. Manas, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं उससे शुरू करना चाहती हूँ. All right. Bhavna है. Bhavna Sisodia is joining me. Bhavna is of course at the location. Bhavna जी, बताइए. जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मानस हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमको मानस वो तस्वीरें दिखा रहे थे, जब वो घटना की तस्वीरें हैं, और मैं एक बार दोबारा से कोशिश करूंगी कि वो मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से. देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी. आप देख सकते हैं जिस बाइक पर साहिल जा रहा था अपने ऑफिस की तरफ, टक्कर इतनी भयावह थी कि आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइक की किस तरीके की कंडीशन हो गई है. यहाँ तक कि बाइक का जो व्हील है वो भी निकल गया था. यानी कि तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह टक्कर जो है वो ये रही होगी. वहीं साहिल के फ्रेंड मानस हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे जानते हैं कि आखिरकार इनकी कब से साहिल से दोस्ती थी, साहिल पढ़ाई में कैसा था, साहिल का किस तरीके का नेचर था, अगर उसकी बात की जाए तो. साहिल से मेरी मुलाकात 8-9 साल पहले हुई थी जितेन के थ्रू. उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था और मैं भी उस टाइम पे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर रहा था, तो उस चीज़ के चलते हमारी थोड़ी मुलाकात हुई थी और तब से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि हमारे इंटरेस्ट बहुत मिलते थे. बहुत ही स्पोर्टी बंदा था. अभी भी इतना काम होने के बावजूद वो फुटबॉल खेलने जाता था अपने दोस्तों के साथ. बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस बंदा था और खाना कभी स्किप नहीं करता था. कॉलेज में गया था, 9 मेडल लेके आया एक ही दिन में स्पोर्ट्स डे पे. तो मल्टी टैलेंटेड तो था ही वो. ठीक है, पढ़ने लिखने में अच्छा था बट इतना नहीं कि जितना वो स्पोर्ट्स में अच्छा था. और हार्ड वर्किंग बहुत था. काम में हमेशा उसका दिमाग चलता था, हमेशा पैसा 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 पैसा, मम्मी को अच्छी ज़िंदगी देनी है, ये चीज़ें थी. दोस्तों के साथ हमेशा था वो. हमें कोई भी दिक्कत होती थी हम उसको फ़ोन करते थे सबसे पहला.
और हमेशा हमेशा हाजिर मिलता था हमको। फिलहाल अगर साहिल की जॉब की बात की जाए तो साहिल किस ऑफिस में काम करते थे, कहाँ जा रहे थे जिस समय ये घटना हुई? ठीक है, साहिल फ़िलहाल तो फ्रीलांसिंग कर रहे थे एक तो प्रॉपर्टीज़ में, और भैया के साथ एक गिफ्ट पैकेजिंग का काम कर रहे थे वो। और उसके अलावा वो अभी मेरे हिसाब से इंटरव्यू के लिए जा रहे थे जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ है सुबह। हालांकि एग्जैक्ट रीज़न क्लियर नहीं है कि वो जा कर रहा था, क्योंकि अभी तक फ़ोन भी नहीं आया मेरे पास। और तो ये इतना मुझे पता है। घटना की बात की जाए तो साहिल के घर से कितनी दूरी पर ये जो है घटना हुई थी? ये 3.5-4 किलोमीटर दूर की घटना है, ज़्यादा दूर नहीं। लाल बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जस्ट जहाँ फ्रंट गेट है उसके साथ वाला रोड है। अगर और आरोपी की बात की जाए, जो कार चालक आरोपी है, वो कहाँ रहते हैं? वो उस यूनिवर्सिटी के पास ही रहता है, एमके रेजिडेंसी में। मानस, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, चूँकि अभी आरोपी के पिता का स्टेटमेंट ये सामने आया है कि उन्हें पता ही नहीं था कि आरोपी घर से गाड़ी लेकर गया। इससे कितना सहमत होता है? मैं तो ये कहूँगा, अगर वो अपने मतलब इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है और क्या लेके जा रहा है, और उसके साथ उसकी बहन भी जा रही है और घर में किसी को पता ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने के लिए इस तरीके के परिवार स्टेटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जिस तरीके से एफआईआर में देखा गया, पहले 19 साल बताया गया, फिर एकदम से उसे नाबालिग 17 साल बताया गया, तो कितने घंटे बाद आप लोगों को पता लगा कि आरोपी नाबालिग है जब पहली एफआईआर दर्ज हुई थी? एफआईआर दर्ज हुई उस टाइम तो हम सबको ये पता था कि वो 19 साल का है। और जब हमें खबर आई कि वो जुवेनाइल में है, तब हमें पता चला कि उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। जो कि सेंस नहीं बनाता एक तरीके से, क्योंकि अगर तुम एफआईआर में 19 साल लिख रहे हो, उसके बाद उसको जुवेनाइल में डाल रहे हो, तो दोनों के लिए अलग अलग सज़ा है। जहाँ एक तरफ आरोपी कार चला रहा था, वहीं उसके साथ उसकी बहन भी बैठी हुई थी, जो स्टंट करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग और वीडियो भी बना रहे थे। और पिता के ऊपर फिलहाल अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो आपको नहीं लगता कि बहन के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी उस समय उस गाड़ी में मौजूद थी? देखिए, बहन की गलती बस इतनी थी कि वो रील बना रही थी और उसने अपने भाई को ये नहीं बोला कि भाई तुझे आराम से चलानी चाहिए, ठीक है। वो बस बहन की गलती है। बहन के बिहाफ पे तो मैं इतना नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके हाथ में गाड़ी भी नहीं थी, वो सिर्फ साथ में पैसेंजर सीट पे बैठी हुई थी, ठीक है। जो मेन गलती है वो जो कार चालक है उसकी है, जिन्होंने उसको गाड़ी दी है उसकी है, और जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहा है उस चीज़ की। एक जानकारी ये भी सामने आई है कि जो आरोपी है उसका बड़ा भाई मौके पर पहुंचा था, जिसने अपना लाइसेंस भी रखा था, कि कहीं ना कहीं छोटे भाई को, आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल हो सकता है। हालांकि मैं उस क्राइम सीन पे था नहीं, ठीक है। इसकी मदर पहले पहुंच गई थी और एक दो दोस्त थे मेरे, मैं तब ऑफिस में था, तो इस चीज़ के बारे में मेरे को इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं। आपने बताया 8-9 साल पुरानी आप लोगों की दोस्ती थी, अब साहिल नहीं रहा, माँ अकेली रह गई है, कैसे संभालेंगे? देखो, हम उनका बेटा तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन इतनी कोशिश कर सकते हैं कि उनको बेटे की कमी महसूस ना हो। ये मेरे और जितेन का खुद का अपना वो था कि मम्मी के साथ आएंगे, मतलब जब भी फ्री होते हैं ऑफिस से एक बार मम्मी घर के चक्कर लगाएंगे, साथ में खाना खा के जाएंगे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि भाई मेरे से कोई दूर हो गया। हालांकि वो दूरी हम कम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ अपनी तरफ से तो कर ही सकते हैं। देखिए, आपने सुना, मानस जो साहिल के दोस्त हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि माँ का गम बेशक से वो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कम करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, क्योंकि मानस और साहिल की लगभग 8 से 9 साल पुरानी दोस्ती थी, जिसके अब जब साहिल इस दुनिया में नहीं रहा, वहीं आपने तस्वीरों में भी देखा कि कितनी भयावह टक्कर थी। साहिल की बाइक की कंडीशन को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार स्कॉर्पियो की किस तरीके की स्पीड रही होगी और उस समय क्या स्थिति होगी। और साफ तौर पर परिवार ये भी कह रहा है कि अगर साहिल को वक्त रहते उपचार मिल जाता, उसे हॉस्पिटल वक्त रहते ले जाया गया होता, तो शायद आज साहिल परिवार के बीच में मौजूद होता। लेकिन ये कहा जा सकता है, जहां दोस्त भी दुख में है, माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं अब साहिल के दोस्त ने ये प्रण लिया है कि बेशक से साहिल वापस नहीं आ सकता, लेकिन साहिल की माँ को कभी साहिल की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। कहीं ना कहीं साहिल के परिवार, साहिल की माँ का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। कोशिश करेंगे कि साहिल की मदर से जो है हम ज़रूर बात कर सकें, लेकिन फिलहाल इस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही कि साहिल की मदर सामने आकर बात कर सके। बने रहिए भावना, we have more breaking news coming in now. Ajit Singh, the injured cab driver